Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today is Monday. I am Drishti and welcome to your today's session of current affairs for polity and governance. I hope all of you had a very prosperous Diwali and enjoyed a lot. Now you guys have had a good break and I hope dobara se will get back on track. We'll study again with the same enthusiasm, actually with a bit more enthusiasm, and let's crack the paper this year, right? So today we are going to discuss a couple of important topics. Those were in news in the past couple of days related to polity and governance and are very important from your exams point of view for both prelims and mains, right? एक बार let's see the index, what all we are going to discuss today. So first topic we are going to discuss today is UCC. UCC is Uniform Civil Code. Uniform Civil Code का जो mention आता है, this is in Article 44 of the Constitution, right? Now Uniform Civil Code बहुत ज़्यादा debate में रहा है. Even Dr. B.R. Ambedkar wanted to push for it, but there were certain opposition related to it. So he had to tone down the way in which he was pushing for Uniform Civil Code, and before he could actually bring it into existence, he sadly passed away. His demise happened, and since then ये पूरा topic बीच में लटका हुआ है. टाइम एंड अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट चालू रहता है, ठीक है. इट कम्स अप इफ एनी हाउ कुछ भी टॉपिक निकल के आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट बार बार आता रहता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टसल बिटवीन इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव. सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव का जो पूरा ये केस सिनारियो आया है, this is in regard to your governor of Kerala, ठीक है. तो यहाँ पे elected representative हुए आपके governor and the appointed representative is your ministers and chief minister. Currently अगर आप देखो, a continuous tussle is going on between these two parties, right? Even if we talk about Delhi, ठीक है, Delhi का case we are not going to discuss right now, but the same tussle has been happening between Lieutenant Governor of Delhi and the Chief Minister and the Ministers of Delhi. तो ये एक continuous जो office का एक overlapping है roles के, ठीक है, jurisdiction की बात आती है, वो एक continuous question में रहता है. So we are going to discuss this in detail, what the Constitution says, how this is ruled, and what are the earlier cases related to it, and what is the stand of courts in this manner. Now then third topic we are going to discuss is doctrine of res judicata, and ये एक बहुत important term है. See, पिछले कुछ सालों में if you see there has been evolving a trend in UPSC. आपसे one liner पूछा जाता है, there are options given and you have to answer, ठीक है. So ये छोटे छोटे topics जब आपके newspaper में आते हैं, so from there the questions are framed. So make a note of it, keep noting them down. ये आपके लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिए हुए हैं. So this is the thing, then जब पेपर सामने आता है we feel like कि out of syllabus आ गया, we don't know कहाँ से आया. So this is an important term, this was in news, and ये कोर्ट के jurisdiction से related है. It's a Latin phrase. क्या है डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, सबसे पहले आपका आज का सीज द मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं. सीज द मेंस इज द इनिशिएटिव वी स्टार्टेड फॉर यू गाइस. सीज द मेंस में हम क्या करते हैं, वी गिव यू अ क्वेश्चन डेली डिपेंडिंग अपॉन द डे एंड द सब्जेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट. क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा. इस क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन जो है दैट इज डन इन द इवनिंग, राइट. ऑल्सो ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, यू कैन राइट योर आंसर्स बेस्ड ऑन इट and post the answer on our website, from where it will be evaluated by our team of experts entirely free of cost, ठीक है. Ultimately this is going to help you in your mains answer writing, and जब आप ये continuous practice करेंगे, you will see how huge the improvement has been in your answer writing, जो पूरी practice session है वो, right. So आज का question is related to your uniform civil code. Question क्या है देख लेते हैं. Now the desirability of a uniform civil code
अगेन आर्टिकल 44 से रिलेटेड है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो इस चीज को जरूर इंकलकेट करेंगे ना। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज consistent with the principles of equality, fairness and justice, ठीक है। नाउ ये आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बेस्ड के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वेश्चन इज, इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस इश्यूज एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में यू हैव टू आंसर इट, यू हैव टू डिस्कस द इश्यूज, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, फेयरनेस, जस्टिस के कंटेक्स्ट में क्या इश्यूज हैं, क्या निकल के आते हैं, ठीक है। A couple of points I'm going to discuss right now. A couple of points you can add from your side. And जो इसका पूरा डिस्कशन है वो आपको शाम को जो हमारा आंसर सेशन जाता है उसमें मिलेगा with Surbhi Ma'am Takes, ठीक है। Now let's get started with the first topic for today. Your first topic for today is Uniform Civil Code. Now Uniform Civil Code क्या कहता है, one nation one law की बात करते हैं। Now why this was a news? This was a news because Government of India ने again pitch करा है for Uniform Civil Code to the Supreme Court, and they have been arguing that different laws for different communities. For example, Hindus का जो पूरा wedding procedure है that is that is governed by your Hindu Marriage Act of 1954. Similarly for Muslims there is Sharia law. Now the rules are not similar, इसलिए कोर्ट के लिए इफ एनी केस गोज टू कोर्ट तो उसका डिसीजन कोर्ट के लिए देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट इटसेल्फ इज पुशिंग फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि एक सिमेट्री आ सके एंड द इंटरफेरेंस इन रिलीजन्स वाला जो पार्ट है उसको भी एड्रेस करा जा सके विद इन वेल टाइम फ्रेम। नाउ ये कहा जा रहा है डिफरेंट जो लॉज हैं दे एक्ट एज एन अफ्रंट टू नेशंस यूनिटी, नेशन की यूनिटी के लिए ये खतरा है, ठीक है। आगे की डिटेल्स क्या है इसमें वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड अगर देखें, if we talk about the background of the same thing, Center has responded to petitions which have been continuously being filed in your Supreme Court and High Courts, where they have been continuously seeking for uniformity in the laws which have been governing matters of कौन-कौन से areas cover करे जाते हैं, matters of divorce, right, succession, ठीक है, succession means legal heir, ठीक है, and inheritance and adoption and guardianship for all irrespective of gender and religion, ठीक है, because most of the religions are ruled by patriarchy, तो एक gender issue भी निकल के आता है यहाँ पे, women issue भी निकल के आता है। then inheritance में because patriarchy है, ठीक है, बहुत सारे rules आ चुके हैं where women have the equal share now, but it is still being contested in the courts. So central government has been pushing for a uniform law for everyone, ताकि कोर्ट के लिए भी डिसीजंस देने में इजी रहे, and even for the people there has to be a certain knowledge of law that this is the law pertaining to everyone and the law is the same for everyone. For example, if you commit a murder, irrespective of your religion, irrespective of your race, irrespective of your caste, irrespective of anything and everything, if you commit a murder, you will be tried in the court of law with certain parameters, certain benchmarks, right? But अगर ये मैरिज की बात आती है, अडॉप्शन की बात आती है, सक्सेशन की बात आती है, सो बिकॉज देयर आर सो मेनी लॉज, यहाँ पे कंफ्यूजन निकल के आता है। नाउ हाउएवर हम बात करें, द गवर्नमेंट हैज नॉट इशूड एनी डायरेक्शन येट टू द लेजिस्लेचर टू एनैक्ट अपॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड, and ultimately this is the policy of legislature, this is the responsibility of a legislature to elect representatives of people and to decide whether to enact a legislation or not in the same manner. Now अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो देयर हैव बीन सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कहते हैं? पहला बोलते हैं दिस एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की बात कहाँ आती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड डिनोट्स द फील्ड ऑफ पर्सनल लॉज। अगेन दोबारा से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज कवर होते हैं। मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस,
custody, guardianship of children, and also inheritance and succession along with your adoption. ये वाले सारे areas cover होते हैं. If we talk about the constitutional provisions regarding the same, तो आर्टिकल 44 जो है आपका, I've already told you आर्टिकल 44 of the DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है आपके, अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, they create an obligation upon the state, they create an obligation upon the state कि आप ऐसा लॉ बनाएं जिससे कि एक यूनिटी बने, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे देश में. ऑल्सो देयर इज अ स्मूथ प्रोसेस फॉर द लॉ टू बी सिमिलर, टू बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन. ठीक है. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आता है. ऑल्सो दिस इज बीइंग आर्ग्यूड दैट अगर इस सेंस में यूसीसी को पुश करा जाता है तो इट विल बी अ गेम चेंजर इन द नेम ऑफ, in the case of national unity of the country. Now, अगर हम states की बात करें तो उत्तराखंड has come out as a shining example and they have formed an expert committee similarly इसी केस के लिए to study जितने भी personal laws हैं and report on amendments to those laws for effective implementation of uniform civil code. So उत्तराखंड ने देखो इस छोटा सा स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है, they have come out with a report with a committee and इसका रिपोर्ट बहुत जल्दी सबमिट होगा. Now अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पस क्या है, आर्टिकल 44 का पर्पस क्या है, so they want to strengthen जो प्रियम्बुलर वर्ड आया है प्रियम्बल से. ठीक है. प्रियम्बल से आपका प्रियम्बुलर वर्ड आया है, प्रियम्बुलर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नोशन है उसको निकाल के लाते हैं. दे वांट टू इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिंगिंग जितनी भी कम्युनिटीज हैं ऑन common platform and being governed by diverse personal laws. Similarly, by divesting religion from social relations and personal laws, थोड़ा सा इसको भी एक certain line में लेके आया जा रहा है. Now, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड जेंडर जस्टिस को हम प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है. दो तरह की अप्रोचेस होती हैं ऑलवेज. देयर इज पॉजिटिव चेक्स, देयर इज नेगेटिव चेक्स. इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन माल्थूजियन, अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो, इवन देयर वी टॉक अबाउट पॉजिटिव चेक्स एंड नेगेटिव चेक्स. सो हेयर इट प्रमोट्स पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड ये हेल्प करेगा एंड करने में जो आपके सोशियो रिलीजियस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के पूरे इश्यूज हैं. ऑल्सो ये स्ट्रेंथन करेगा जो सेक्युलर फैब्रिक है ऑफ द कंट्री को. फॉर एग्जाम्पल एक मेजर जो इसमें शाइनिंग एग्जाम्पल निकल के आता है जहाँ पे इसको एक तरह से अचीवमेंट माना जा रहा है, दैट इज ऑन ट्रिपल तलाक. बहुत सारे लूप होल्स हैं ट्रिपल तलाक में. अगर वो टॉपिक आगे न्यूज में आएगा वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट अगेन, बट फॉर नाउ ban on triple talaq is one of them. Now it will also help in eradication of unjust customs and traditions. एक unified personal law अगर आ जाए तो this will eradicate many prevalent जो evil आपके unjust customs हैं and across various communities हैं. For example इसमें भी जो shining example आता है that is your eradication of manual scavenging. जो आपका manual scavenging act आया था which was very inhumane behavior, insensitive behavior towards manual scavengers, उनके जो रिफॉर्म के लिए आया उसकी बात करी जाती है. Now also there is going to be an administrative convenience. आप इंडिया की बात देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन, जो पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया इज सून अबाउट टू पास चाइना इन द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. अगेन माल्थस का कंसेप्ट आपने ह्यूमन इकोनॉमिक जो जोग्राफी है उसमें पढ़ा होगा, माल्थूजियन थ्योरी का. सो सिमिलरली अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, टोटल वर्कफोर्स पॉपुलेशन की बात करें, तो इफ़ दे आर एंगेज्ड इन ऑल दीज मैटर्स ऑफ jurisdiction, laws and courts, तो वो इकोनॉमी में अपना पूरा पोटेंशियल देने में काबिल नहीं रहेंगे. ठीक है. सो टू मेक थिंग्स ईजियर देयर, इंडिया नीड्स टू हैव अ सर्टेन अम्ब्रेला लॉ
जिससे कि सारी चीज़ें कवर हों एंड देयर इज़ अ क्लैरिटी विद एवरीवन एंड to everyone, including the parties, including the jurisdiction party, including the deciding authority कि करना क्या है and what the law says, what the law defines. ठीक है, so administrative convenience भी यहाँ से आ जाएगी आपकी. Now there are certain arguments जो against uniform civil code दिए जाते हैं. पहला कहा जाता है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे देर आर इनहेरेंट सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व. किस किस सेंस में? रिगार्डिंग जो आपके ट्रेडिशनल पर्सनल लॉज हैं, रिलीजियस टेनेंट्स हैं एंड कल्चरल एथोस एंड प्रैक्टिसेस हैं. दिस इज बीइंग आर्ग्यूड दैट इट इज गोइंग टू मेडल विद all these four parts and ultimately this will be chaotic and devastating for the secular and जो religious fabric of various religions है उनके लिए. For example, again इसमें जो एक major example निकल के आता है that is the weddings in Muslim community, Muslim religion, Islam are ruled by Sharia law and not by a marriage act. तो उनके जो rulings हैं वो भी अलग निकल के आते हैं. Now we basically need a wider deliberation and discussion over it, and any effort to bring change and uniformity in personal laws which has been governing different communities should be driven by आपके constant dialogue and consensus. सबकी मर्जी से सबको include करके जितनी भी parties हैं उनको confidence में लेके this has to be pushed about. सिमिलर केस में जो आपकी 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, दे गेव अ कंसल्टेशन पेपर जिसका टाइटल था रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ in 2018 and they suggested the need for wider deliberation and discussion. So it is high time जो 21st law commission की report है that should be implemented, that should be worked upon right now. ठीक है. Now also इसमें एक मेजर इशू कहा जा रहा है दिस विल हैम्पर सिंक्रेटिक कल्चर. जो एक सिंक में रिलीजियस कल्चर है इंडिया का ये उसको हैम्पर करेगा. Also, Uniform Civil Code is being seen as the violation of fundamental rights and it would directly violate your Article 25 of the Indian Constitution जिसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है इन रिलीजियस अफेयर्स. सो एक ये मेजर आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है. ऑल्सो दिस माइट लीड टू communal riots and communal unrest, right? Now if we talk about some other provisions which are related to Uniform Civil Code, जो आपका 7th schedule of the constitution है, many matters which are pertaining to Uniform Civil Code they are present in 5 of the concurrent lists. ठीक है, 2 लिस्ट होती हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट 3 लिस्ट होती हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. नाउ कंकरेंट लिस्ट में प्रेजेंट है जिसमें आते हैं लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन इन द बोथ यूनियन एंड स्टेट्स एंड 7th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. नाउ मुस्लिम पर्सनल जो आपका लॉ है, शरिया एप्लीकेशन एक्ट है ऑफ 1937, दिस कवर्स मैटर्स ऑफ मैरिज, डाउरी, अलाउंस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग टर्म्स हैं जिसमें हलाला बोला जाता है, ट्रिपल तलाक. देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस जो आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ है ऑफ 1937 है जिसके अंडर आता है एंड विच आर नॉट in line with the marriage act that are prevalent for majority people in the country. ठीक है. Now Hindu Succession Act की बात करें of 1956 तो it was amended in 2005 to give daughters inheritance right in ancestral property. पहले पेट्रियार्की की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी. इवन नाउ इट इज़ प्रेवलेंट बट दिस वाज अ वेलकमिंग डिसीजन फ्रॉम कोर्ट साइड जिसमें कि पहले शेयर जो रहता था दैट वाज ओनली ऑफ योर मेल हेयर बट अब विमेन, ठीक है, द विमेन ऑल्सो द गर्ल्स द डॉटर्स हैव ऑल्सो बिन गिवन द इक्वल राइट्स फॉर ये जो आपका प्रॉपर्टी राइट्स है इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अगेन हिंदू कोड बिल की बात करें सो इट वॉज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड इट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग हिंदू लॉज जो हैं. अगेन दे वॉन्टेड टू लीगलाइज डाइवोर्स, ऑपोजिंग पॉलीगैमी and they wanted to give inheritance जो rights थे to the daughters, but उस time due to heavy criticism and opposition for this code he had
to get it passed in 4 different laws, 4 different sections, and it was hoped कि आगे जाके जितनी बाकी सारी communities हैं उनके ऊपर भी ये लागू कर दिया जाएगा, but because of his sad demise this could not be processed further, and उसके बाद से ये पूरा issue वहीं का वहीं अटका हुआ है. Right now if issues तो हमने देख लिए, what can be done about it वो देख लेते हैं. Now सब्जेक्ट मैटर है जो ऑफ रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ इन 2018. दिस वाज प्लेस्ड बिफोर 22nd लॉ कमीशन फॉर कंसिडरेशन व्हेन चेयरमैन एंड मेंबर्स एंड जो उसके कमीशन के मेंबर्स हैं चेयरमैन दोनों अपॉइंट करे जाएंगे. ठीक है, सो एक ये मेजर 22nd लॉ कमीशन के आगे एक टास्क रहेगा, हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू. Now government side by side should also examine the commission report, submitted report है, and consulted with जितने भी stakeholders हैं of various communities, and then come to a consensus about what needs to be done, what has to be done. Also the possibility of codification of all the personal laws as suggested by the law commission should be considered ultimately to arrive at some principles where prioritizing equity over imposition of uniform civil code is done in India, so that it becomes smooth and clear for everyone, administration, people, and brings a clarity over norms in the country as a whole. ठीक है, I hope this topic is clear. अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है प्लीज मेंशन इन कमेंट्स, I'll try taking them up in next class. अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ. नाउ देयर हैज बीन अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव. न्यूज़ में क्यों था रिसेंटली, वैसे तो आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, बट लेट मी जस्ट रिपीट इट. नाउ रिसेंटली केरला गवर्नर जो थे, ही हैज वार्न्ड मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट दैट ही इज गोइंग टू रिमूव देम whosoever will try to lower the dignity of his office. इस पूरे इशू को लेके काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा है एंड इट हैज़ बीन इन न्यूज़. नाउ कंट्रोवर्सी की बात करें, अगर लीगल स्टैंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट गिव गवर्नर डिक्टेटोरियल पावर्स टू रिमूव द मिनिस्टर्स. ठीक है, जो सेट ऑफ मिनिस्टर्स है इट सर्व्स एज द एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट गवर्नर कैन नॉट रिमूव मिनिस्टर्स if the government is in majority in the state. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लॉ है, आपने बेसिक पॉलिटी में पढ़ा होगा ये. Now if you talk about past, till now there has been no occasion so far of a governor unilaterally removing the minister from the government. Major issues क्या क्या आते हैं इसमें. Governors allegedly refuse to give assent to जो आपका यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल है ऑफ 2022. नाउ असेंबली ने इसको पास करा था इस साल, बट इशू क्या था, द बिल इट गिव्स एन अपर हैंड टू स्टेट गवर्नमेंट इन द सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन केरला. नाउ गवर्नर ideally he should return the bill for reconsideration instead of withholding it for his approval indefinitely. बट ये एक मेजर इशू निकल के आया जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी निकल के आई है. नाउ वी टॉक अबाउट द बेसिक रोल ऑफ गवर्नर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. सो आर्टिकल आपके 153 to 161 जो है, they talk about the position, role, powers and conditions of office of the governor which are described in the constitution. Now position of governor here, this is similar to that of president at union. ठीक है, president country का होता है, governor state का होता है. Now he is at the head of state's executive power. Executive power का head है, and bearing some matters he acts on the advice of council of ministers जो हैं of the state legislature. Now what is his duty? He acts as a link between जो आपकी central government है and state government है. Now governor जो है he is appointed by the president basically on the advice of central government and
अल्टीमेटली एक स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर उसमें एक मेजर लिंक की तरह एक्ट करता है. If we talk about the powers, governor enjoys certain powers such as giving or withholding assent bill passed by a state legislature or determining जो time they need for a party to prove its majority. ठीक है, when the party must be first called to do so. जनरली जो आपकी हंग असेंबली होती है उसके बाद बेसिक जो रोल्स हैं, बेसिक पार्ट्स है गवर्नर की, हम वो डिस्कस कर रहे हैं. यू मस्ट हैव स्टडीड देम इन पॉलिटी. नाउ आर्टिकल 164 की बात करें, सो इट डील्स विद जो आपकी अपॉइंटमेंट है ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर. Now, while इस पूरे प्रोसेस में the governor does not have to seek anyone's advice while appointing chief minister, he can only appoint chief minister only जो आपकी रिकमेंडेशन है ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बाद. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ओकेजन्स पे ये कहा है दैट government, if it enjoys majority in the house, they cannot be dismissed by the governor. Governor does not have that sort of authority. Also, if जो government rule कर रही है उसके किसी भी मिनिस्टर को गवर्नर कैन नॉट टर्मिनेट, कैन नॉट रिमूव देम फ्रॉम देयर ऑफिस. प्लेजर ऑफ गवर्नर जो है दैट इज नॉट कोटर्मिनस विद द मेजॉरिटी इन द हाउस. This is something which has been clarified by the apex court time and again. Now there are certain cases जो past में आए हैं which are related to governor and their powers. ठीक है, prelims में भी continuously questions आते हैं. there is a certain case study आपको दी जाती है and then it is asked कि ये किससे related है. So शमशेर सिंह एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया है 1974 में 7 जज का बेंच था ऑफ सुप्रीम कोर्ट. दे डिक्लेयर्ड दैट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की है दैट इज द ओनली कस्टोडियल पावर. दे आर कस्टोडियंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं ये उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करेंगे. नाउ सिमिलरली देयर वाज अनदर केस. दूसरा केस कौन था? नबम रेबिया एंड एक्सेट्रा वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर एंड ORS का केस आया इन उड़ीसा का केस आया इन 2016 वेयर सुप्रीम कोर्ट ने साइट करी ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड कहा गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर under the constitution has no function which he can discharge by himself. No function at all. इसको 2 बार repeat करा गया. He has no functions, he has certain duties to perform and his only duties is that house will do well to bear this in mind and distinction that governor cannot interfere in the matter of ministers how it functions. Now अगर हम बात करें what does the pleasure of governor mean, this does not mean governor has the right to dismiss chief minister or ministers at will. Governor can have his pleasure as long as government जो है it enjoys majority in the house. Governor can withhold or withdraw his pleasure only when जो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, when there are certain crisis with the majority ruling party in the state. ठीक है, only at that particular of time गवर्नर का जो प्लेजर है it comes into play and he can dismiss the government. सजेशंस की बात करें अगर इस पूरे केस में व्हाट कैन बी डन, अगर आंसर राइटिंग आती है तो यू ऑलवेज हैव टू पुट इन दिस सजेशन थिंग. सो नेशनल कमीशन ने रिव्यू करा था. नाउ रिव्यू ऑफ द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन करा गया था. there was a whole committee which was appointed by the Atal Bihari Vajpayee government in 2000 and they recommended certain significant changes in selection of governors. क्या recommend करा? इससे रिलेटेड 2 कमीशंस आए हैं, 2 प्रोमिनेंट कमीशंस आए हैं. एक तो ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने कंडक्ट करा था, दूसरा आया था पंछी कमीशन. नाउ दोनों डिस्कस करेंगे. नाउ जो वाजपेयी गवर्नमेंट के ड्यूरिंग कमीशन था उन्होंने क्या डिस्कस करा कि जो गवर्नर्स हैं ऑफ द स्टेट दे शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ताकि फंक्शनिंग स्मूथ रहे, दोनों में ना टसल ना रहे. ठीक है, अल्टीमेटली बिकॉज द
अगर टसल आता है तो उसका कॉस्ट जो पब्लिक है, पब्लिक ऑफ द स्टेट, उसको पे करना पड़ता है। पॉलिसी अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ नहीं होगा तो पब्लिक विल हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ इट। नाउ नॉर्मली जो 5 ईयर टर्म है दैट शुड बी अडियर्ड, एंड जो रिमूवल है या ट्रांसफर ऑफ द गवर्नर है दिस शुड बी बाय फॉलोइंग अ सिमिलर प्रोसीजर एज इज फॉलोड ड्यूरिंग देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है एक स्टेट का, उसका एक क्रूशियल रोल आएगा उसमें। देन आई एक सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन was set up in 1983 and they were set up to look into जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, एंड इट प्रपोज्ड जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा है दे शुड बी कंसल्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, now similarly came Panchi Commission, the Justice Madan Mohan Panchi Committee. Now this was constituted again in 2007 and इन्होंने propose करा that there should be a committee comprising Prime Minister, Home Minister, Vice President and concerned Chief Minister of the state, and इन सबके consensus से, इन सबके discussion के बाद the Governor of the state should be appointed. ठीक है, again सेंट्रल स्टेट का जो स्मूथनिंग है, जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्मूथ रहे। दे ऑल्सो रिकमेंडेड कि डिलीट करें आप, क्या डिलीट करें, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे बैक्ड द राइट ऑफ गवर्नर टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स है अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ऑल्सो इन्होंने क्या आर्ग्यू करा, दे आर्ग्यूड फॉर अ प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगेन इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत टीडियस होता है, बट they argued for it. So अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ clarity आई नहीं है। The whole tussle has been going on. Let's see how the issue evolves. इसमें और कोई development होगा तो we are going to discuss it again. Right? I hope this topic is clear. आगे बढ़ते हैं आपके आज के थर्ड और लास्ट टॉपिक पे। Now डिस्कस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। Now recently सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रेस जुडिकाटा है दिस इज अट्रैक्टेड नॉट ओनली इन सेपरेट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स बट ऑल्सो जो आपकी सब्सिक्वेंट स्टेजेस होती हैं ऑफ द सेम प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर भी। ठीक है, सो एक केस चल रहा है उसके ऊपर ही ये लागू नहीं होगा, बट उसकी जो सेम स्टेजेस होती हैं इन डिफरेंट कोर्ट्स ये उसके ऊपर भी लागू होता है। आई नो अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं डिटेल में, देन आपको क्लैरिटी आएगी ये है क्या। Now, doctrine of res judicata जो है this has been derived from a Latin maxim. Latin से इसका derivation आया है and इसका meaning होता है the thing has been judged. क्या मतलब है इसका? It means जो issue है this has already been judged before the court and decided by another court between the same parties. छोटा सा example है, एक कोर्ट केस गया पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच में and the decision was made by High Court. Now they were not satisfied by it and they took the case to Supreme Court. So यहाँ पे doctrine of res judicata आता है जहाँ पे the case has already been discussed between the same parties by a court and it has come forward to a different court. ठीक है, now principle जो है it applies particularly जब एक litigant है they attempts to file subsequent lawsuit on the same matter. ठीक है, हाई कोर्ट से आपको जजमेंट मिल गया है, आप डिससैटिस्फाइड हो एंड यू हैव फाइल्ड फॉर द सेम जो आपका इशू है उसके लिए टू अ हायर कोर्ट और अनदर कोर्ट, एंड जो आपकी सेम पार्टीज हैं दे आर इन्वॉल्व्ड। रेस जुडिकाटा का जो कॉन्सेप्ट है दैट इन्वॉल्व्स बोथ केसेस ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगेन नाउ इन ऑर्डर टू सेट अप रेस जुडिकाटा कुछ चीजें एस्टैब्लिश करनी जरूरी हैं। क्या क्या है? पहला है द डिसीजन ऑन विच रेस जुडिकाटा इज बेस्ड वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन वॉज इन जुडिशियल रेलेवेंट सेंस। ठीक है, उसके ऊपर एक जूरिसडिक्शन आना चाहिए, जो आपका जुडिशियल रेलेवेंट सेंस है वो होना चाहिए। ऑल्सो देयर शुड बी अ क्लैरिटी दैट इज इट वॉज इन फैक्ट प्रोनाउंस्ड। ऑल्सो जो आपका ट्राइब्यूनल है it actually had jurisdiction over parties and subject matter. For example, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है तो if it is trading in India, it has some issue with an Indian party, तो
वो केस फाइल करेगी इंडिया में, नॉट इफ द कंपनी बिलोंग्स टू यूएस, तो यूएस में फाइल होगा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन के जो लॉज हैं, इंडिया के लॉज है, इंडियन पार्टी से उनका जो इशू है उसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कोर्ट्स का आता है, ना कि यूएस कोर्ट का आएगा। ठीक है, तो ये ट्राइब्यूनल जो है जिसके पास भी केस जा रहा है उसके पास उस चीज का ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स, ये देखना चाहिए द डिसीजन इज फाइनल। अगर आप हाई कोर्ट के केस से जो वर्डिक्ट दिया है उससे डिससैटिस्फाइड हो, अनसैटिस्फाइड हो, एंड यू टेक इट टू सुप्रीम कोर्ट, सो यू हैव टू मेक इट श्योर कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, अगर वो केस अभी चल रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील नहीं कर सकते हो। अगेन उस चीज के मेरिट्स क्लियर होने चाहिए। Now there should be determined a question raised in later litigation. Also इसके साथ क्या देखा जाना चाहिए, that parties are same in their previous or earlier decision was in rem. In rem का मतलब क्या है? In rem jurisdiction का मतलब होता है कि जो फिजिकल अथॉरिटी है उसके ऊपर जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसका jurisdiction है या नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप यू लर्नड अबाउट दिस न्यू टर्म। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.